Welcome once again, children. So we were doing last time exercise 1.4 and we were doing union and intersection of two sets. We have done universal set also. Now we are doing union and intersection of the two sets. So we are continuing the question number 6. So I am writing question number 6, children. So look at me. Now set A is given 3, 5, 7, 9, 11. Okay? Question exercise 1.4. Set. Question number 6. Set A is given 3, 5, 7, 9, 11. Okay, children? 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Set B is also given. Set B 7, 9, 11, 13. 7, 9, 11 and 13. Set C is given 11, 13, 15. 11, 13 and 15. Set D is also given 15 and 17. Okay, children? Now I am taking last part of this question. This question has so many parts, so I am taking last part. So last part is 10th part, and what we have to prove in 10th part? A union, what is the value of 10th part? A union D, A union D intersection, B union C. तो इससे पहले के जो पार्ट हैं चिल्ड्रन वो सारे आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको A यूनियन D और B यूनियन C फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A यूनियन D एंड B यूनियन C। A और D का यूनियन, A और D का यूनियन। सो इन दोनों के सारे एलिमेंट मिला के आपको बताने टोटल एलिमेंट ऑफ A एंड D। सो 3, 5, 7, 9, 11, 15 and 17. So I am writing here 3, 5, 7, 9, 11, 15 and 17. Okay, children? So this is A union B. Now put the sign of intersection. Now we are finding B union C. B और C के मिला के सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट ऑफ B एंड C. तो 7, 9, 11, 13, यहाँ दोनों रिपीट हो रहे हैं तो 15 और बचा है बस। These are total element of B and C. Okay. Now we have to find the common element of these two sets. ये आया A union D और ये आया B union C. So now we are finding the total नहीं common element of this set and this set. So what are the common elements? 7 present here, 7 here also, 9, 11. These elements are common elements. 17 और यहाँ 17 नहीं है, तो यहाँ 15 और 17 है, वहाँ 13 और 15. So 15 also there, 15 and 15. So these elements are common elements. So 7, 9, 11, 15. Okay. So these are common element of these two sets. So yes, children, what we were finding. First of all, we have found A union D, then B union C. फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये फाइंड करने के बाद इन दोनों सेट की जो वैल्यू आएंगी उन दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करने। ओके, सो ये उन दोनों के कॉमन एलिमेंट हुए। सो दिस वाज 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो छोटे छोटे पार्ट कुछ और भी हैं, यू कैन डू दीज पार्ट और दैट पार्ट योरसेल्फ। Okay, children. So I am taking one more question.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट? अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ डिसजॉइंट सेट. If there is no common element in two sets, then they call disjoint set. एक बार फिर से सुन लो. If there is no common element in two sets, then they call disjoint set or more than two sets. अगर दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. Okay, children? So I am taking question number 8. So what are the example of disjoint set? So I am writing first. Disjoint. If there is no common element, then they call disjoint set. Okay, children? So I am taking question number 8. We are doing exercise 1.4. So I am taking question number 8. So what is question number 8? Two sets are given. 1, 2, 3, 4. Set A is given 1, 2, 3, 4. And set B is given. Set B is given. X is a natural number. 4 less than X less than 6. X such that X belongs to natural number. And 4 less than X less than 6. क्लियरली आप देख सकते हो ये टेबुलर फॉर्म में है यानी कि रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म में. तो जब तक हम दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे हमें क्लियरली कोई चीज नजर नहीं आएगी. ओके, सो 4 लेस देन एक्स, अच्छा यहाँ दोनों जगह इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. 4 लेस देन एक्स लेस देन 6. तो सेट बी को हम दोबारा से रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. So set B is equal to 4 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है. 6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा. तो 4, 5 and 6. Okay, children? So is there common element? So set A और set B में कुछ common element है तो 4 is the common element. तो A इंटरसेक्शन B फाइंड करना होगा. A इंटरसेक्शन B is equal to 4. So these two sets are not disjoint set क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है. अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, लेकिन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है. सो दे आर नॉट डिसजॉइंट. ओके, दे आर नॉट डिसजॉइंट. ओके चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिसजॉइंट. अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो उसे डिसजॉइंट नहीं बोलते. अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होता है कुछ भी तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. ओके चिल्ड्रन, तो एक पार्ट और है वो भी आप अपने आप कर सकते हो. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? क्वेश्चन नंबर 10. दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? Difference of two sets. Okay children, so difference का मतलब आप समझ लीजिए. Set A is equal to 2, 3, 4, 5. Okay, ये साइन जरा आप ठीक से लगा लिया करें. साइन को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो 2, 3, 4, 5 and B set 4, 5, 7, 9. Okay, now we are finding A minus B. A minus B. तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है चिल्ड्रन? A minus B. A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो तो माइनस हो जाएंगे और A के पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे वो आंसर होगा.
So 4 and 5 are common elements, so they will be cancel each other. So remaining element of set A are 2 and 3. So 2 and 3 is the remaining answer of these two sets. A minus B. Similarly, we can find B minus A. माइनस करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि A के पास क्या बचा, उस टाइम हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना होता कि B के पास क्या बचा। कॉमन एलिमेंट माइनस हो जाएंगे और A के पास जो बचेगा जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हम A में से B को माइनस कर रहे हैं, तो A के पास कितने एलिमेंट बचे वो A माइनस B होगा। अगर हम B में से A को माइनस करेंगे तो फिर हम देखेंगे B के पास क्या बचा, फिर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि A के पास क्या है, ठीक है। B में से A को माइनस करेंगे तो B के पास क्या बचा, तो 4 और 5 तो कैंसिल हो गया, 7 9 बचाएगा। Okay, children. So this was question number 10. तो ये तो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं आप करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10. So we are having two sets. X set is equal to ABCD. Capital X is equal to small ABCD. And capital Y is equal to FBDG. FB D and G. तो मुझे x माइनस वाई फाइंड करना है, तो जैसा यहाँ किया है ऐसे ही करके दिखाना है। ABCD में से FBDG माइनस करना है, जो कॉमन एलिमेंट है B और D कॉमन एलिमेंट है। देखो B और D तो कैंसिल हो गए, तो A और C बचा इसके पास, A एंड C। ओके, और y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो B और D तो कैंसिल हो गए, बचा F और G। क्लियर? सो आप लोग समझ गए होंगे कि A माइनस बी नहीं, सॉरी, x माइनस वाई क्या होगा और y माइनस एक्स क्या होगा। x में से y माइनस करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, जो x के पास बचेंगे वो x माइनस वाई होगा, और y माइनस एक्स में जो y के पास होंगे वो y माइनस एक्स होगा। ओके चिल्ड्रन, तो फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 सेम, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, सेट ऑफ रियल नंबर, R is the set of real number, set of real number, and Q is the set of rational number. चिल्ड्रन ये वाले सारे क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं। ओके बेटा, ये सब क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, बाई चांस अगर कभी आते हैं तो 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलकर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, दो ही टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, रियल नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, और रियल नंबर को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। तो रियल में से अगर रेशनल को माइनस करेंगे तो इर्रेशनल आंसर आएगा। सो व्हाट अबाउट R माइनस क्यू? So R minus Q will be equal to irrational number. आप डायरेक्टली ही इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? So real number minus rational number is equal to irrational number. Is that clear children? So now we are moving exercise towards exercise 1.5. एक बात और ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज 1.5 हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे आगे वाली एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है, वहां थोड़ा सा यूज कॉम्प्लीमेंट का है। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, एक सेट और उसका उल्टा सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आप सुन लो। लेकिन मैं क्लियर बता दूं, कॉम्प्लीमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगली एक्सरसाइज के लिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताना जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। Complement of set.
Look here, children. Suppose universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is any universal set. Okay? And set A is equal to 3, 4, 7, 9. And set B is equal to 1, 3, 5, 7. तो what do you mean by complement? तो complement को represent करते हैं हम A dash से. कभी कभी AC भी लिखा होता है डायरेक्ट. AC का मतलब A complement. A dash भी represent करते हैं हम और AC भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट. AC का मतलब A complement. तो complement को हम find कैसे करते हैं? Universal set minus A set. तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से सेट A को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके? माइनस सेट A की वैल्यू क्या है? 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7, 9. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सेट A की वैल्यू है 3, 4, 7, 9. ओके चिल्ड्रन? तो इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे, जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट होगा. सो A कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं. 3 इज कैंसिल बाय 3, 4 इज कैंसिल बाय 4, 7 इज कैंसिल बाय 7, 9 इज कैंसिल बाय 9. तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो आंसर होगा 1, 2, 5, 6, 9. 1, 2, 5, 6, 8. 1, 2, 5, 6, 8. This is A complement. Clear children? Similarly, we can find B complement. B complement U में से B माइनस कर देंगे तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. तो B के एलिमेंट क्या है? 1, 3, 5, 7. तो 1, 3, 5, 7 हमें नहीं लिखना, तो लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8, 9. This is B dash. 1, 3, 5, 7 नहीं लिखना, तो 2, 4, 6, 8, 9. ठीक है? एक बार फिर से चेक करो. 1, 3, 4 भी लिखेंगे. 1, 3, 5, 7 4 एलिमेंट है, यहाँ 5 एलिमेंट है. ओके? तो ये टोटल 9 एलिमेंट है. तो हम ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कभी कई बार कि ये 4 एलिमेंट है, ये 9 एलिमेंट है. तो 9 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो टोटल 5 एलिमेंट बचने चाहिए. तो इससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा. So this is B complement. Okay children? So we are not doing exercise 1.5. Now we are starting exercise 1.6. Okay children? तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि किसी सेट का जो भी पार्ट है उसका काउंटर पार्ट उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. यूनिवर्सल सेट में से सेट उस सेट को पर्टिकुलर सेट को माइनस कर दो तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन? सो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 1.6. तो 1.6 में क्लियर चिल्ड्रन, पहले मुझे ये बताना है कि 1.6 में हमें ये बताना दोनों सेट के मिला के टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे. फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B. ओके? तो सेट A में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ है 9 और ये 10 भी एलिमेंट. तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? देखो जरा, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके? और सेट A की वैल्यू क्या है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. सेट B में क्या एलिमेंट है? 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. और
इसके बाद क्या फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट हमने ऑलरेडी लिख ही दिया, 1 से लगा के 9 तक, 9b और 10b, इसमें 10b। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक्सरसाइज 1.6 में हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.6। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। ओके चिल्ड्रन, अगर मैं यहां से आपको देख के बताऊं तो टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होने चाहिए, यहां से आप देख के बताओ ए यूनियन बी। ये साइड में मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा है कि जिससे आप बताओ मुझे टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए। यहां बताओ, सेट ए के मैं सारे एलिमेंट लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेट बी के भी सारे एलिमेंट लिख लेता हूं, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। अगर मैं इन सबका टोटल करूंगा तो कितने एलिमेंट बनेंगे, तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, टोटल 10 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन 10 थोड़ी होंगे, 2 एलिमेंट कॉमन एलिमेंट भी तो है, तो इन कॉमन एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा, जिसे हम फॉर्मूला बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट। तो इस चीज को बोलते हैं, तो ये माइनस हम कर क्यों रहे हैं, कॉमन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ हमने देखा 5 एलिमेंट सेट ए में है, 5 एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन 2 कॉमन एलिमेंट है, वो दोनों साइड में गिन लिया हमने। देखो यहाँ 4 और 5 यहाँ भी है, 4 और 5 यहाँ भी, तो उन दोनों को कंबाइंडली करके हमें एक ही साइड में गिनना है, ठीक है। सो काउंट इन वन साइड ओनली, सो दैट विल बी इक्वल टू, हाँ तो इसे माइनस करके दिखाओ, जो जो कॉमन एलिमेंट है उसे माइनस करो। तो कॉमन एलिमेंट आर 4 and 5। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर हुआ। ओके चिल्ड्रन, तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें इस चीज का कि हमारे पास ए और बी के मिला के एलिमेंट कितने होंगे। अगर हमारे पास वेन डायग्राम बना हुआ है तो उसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन अगर वेन डायग्राम नहीं है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो नाउ वन मोर थिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली। ए ओनली का मतलब समझ लीजिए आप, ए ओनली मैं इस पार्ट को बोल रहा हूं, देखो ये पार्ट है ए ओनली, जो शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है। तो सेट ए में से आप कॉमन पार्ट माइनस कर दो, बीच का कॉमन पार्ट है और ये किनारे का ए ओनली पार्ट है, ए ओनली, ये याद रखना, ठीक है। ए ओनली मीन्स एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कॉमन एलिमेंट क्या क्या है दोनों में, 4 and 5। तो सेट ए ओनली है 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ये हुआ ए ओनली। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, जैसे क्लास में 2-3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। कोई चाय पीने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ बहुत सारे चाय पीने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ कॉफी पीने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे जो दोनों टाइप के ड्रिंक लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं और चाय भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का क्लास टीचर मैं हूं और मैंने पूछा कितने स्टूडेंट चाय पीते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने पूछा कितने स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। जब मैंने टोटल गिन के देखा तो उनका नंबर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि जो हाथ खड़ा करने वाले हैं, जो रेज हैंड करने वाले स्टूडेंट हैं, वो चाय वाले भी कॉमन है, कुछ स्टूडेंट कॉमन है, और कुछ टी वाले भी कॉमन है, कुछ कॉफी वाले भी कॉमन। तो जो कॉमन स्टूडेंट हैं वो दोनों साइड हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। कि जब मैंने पूछा चाय कितने स्टूडेंट पीते हैं तो 10 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है। जब मैंने पूछा कॉफी कितने स्टूडेंट पीते हैं तो 12 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, टोटल 22 बच्चे हो गए। लेकिन टोटल क्लास में मैं गिन के देखता हूँ तो क्लास के स्टूडेंट हैं टोटल 18 स्टूडेंट हैं। क्लास में टोटल स्टूडेंट 18 है, लेकिन जब दोनों को अलग अलग गिनता हूँ तो टोटल स्टूडेंट बनते हैं 22,
ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कॉमन स्टूडेंट हैं दोनों टाइप के ड्रिंक पीने वाले, वो दोनों के दोनों साइड में हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, वो दोनों साइड में हाथ उठा रहे हैं, तो उस पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूंगा टी ओनली, हु ड्रिंक टी ओनली, तो टी वाले पार्ट में से कॉमन पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। जो दोनों टाइप का ड्रिंक करते हैं उन स्टूडेंट्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूंगा कॉफी पीने वाले, ठीक है, कॉफी ओनली, तो टोटल स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग कॉफी माइनस टोटल स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग बोथ द ड्रिंक। ओके चिल्ड्रन, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो ए ओनली का मतलब ये आप समझ गए होंगे। कभी कभी हमारे पास 3 सेट होते हैं, तो 3 सेट का फॉर्मूला हम आगे चल के बताएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन, एक दो चीज मैं और बता दूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो इसका मतलब ये भी होता है ए और बी, ए और बी। ओके, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी। ये बात आप समझ लें ठीक से। और इसके लिए कभी कभी एट लीस्ट वर्ड भी यूज होता है, एट लीस्ट, और इसके लिए एट मोस्ट वर्ड यूज होता है, एट मोस्ट। ओके चिल्ड्रन, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी। ए और बी का मतलब है एट लीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, और एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक। ओके, ड्रिंक की बात कर रहे हैं हम। तो ए यूनियन बी, ए और बी, यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। कभी कभी ऐसे वर्ड आप फेस करेंगे तो उस टाइम आप उसको कैसे लिखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? So do it. So do one more question. So question number 1. Exercise 1.6. Question number 1. Question number 1, children. In question number 1, x and y are two sets such that number of element in set x is 17, number of element in set y is equal to 23, and total number of element in x union y is equal to 38. Find the common element of n x intersection y. So nx is also given. Number of element in set x is given 17. Number of element in set y is also given 23. And total element of x and y, x intersection नहीं रहेंगे, इसको यूनियन, total element of x and y, x और y, and वर्ड भी नहीं यूज करना है आपको, यूनियन के लिए और लिखना है। total element of x और y are 38. Now we have to find n x intersection y. तो हमें फॉर्मूले का भी बताइए, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था n x यूनियन y। हम x लिखें या y लिखें या a और b लिखें, बात एक ही है। तो nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ओके चिल्ड्रन, सो वी आर प्रोवाइडेड दिस वैल्यू 38, nx is given 17, ny is given 23, nx intersection y we have to find. So 17 plus 23 40. So 38 is equal to 40 minus nx intersection y. Okay? तो nx intersection y को इधर लेके आओ, nx intersection y is equal to 40 minus 38. So that is equal to 2. So there are two common element in both the set. Is it okay children? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम को? इस टाइप से लिखेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा। इसको ए और बी की फॉर्म में लिखें, चाहे ए और चाहे एक्स और वाई की फॉर्म में लिखें, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स और वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके चिल्ड्रन, तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जरा।
So in a group of 65 people. तो स्टूडेंट आपको एक बात का और भी ध्यान देना है, हाँ, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 people and A union B. Sorry children, once again I am taking next pen. And X union Y. Total A and B. A union B are given 65. In a group of people, there are 65 people, 40 like cricket. तो मैं A सेट मान लेता हूं क्रिकेट को, 45 like cricket और 40 like cricket, okay? And B सेट मान लेता हूं 40 like tennis, 20 टेनिस लाइक 8। इसका बताना है हमें कि कितने स्टूडेंट टेनिस खेलते हैं, और एन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो गिवन, ठीक है? एन ए, इसको एन ए लिखेंगे, इसे एन बी लिखेंगे, इसे एन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लो। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप है 65 स्टूडेंट, total number of students who are playing cricket are 40, total number of students who are playing tennis we have to find, and total common students of both the game are 10। एक बार फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट 65 हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? टेनिस वालों का हमें पता नहीं कितने स्टूडेंट टेनिस खेलते हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं वो 10 है। हमें ये पता लगाना है जो टेनिस खेलते हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस और हाउ मैनी प्ले टेनिस, ओके? उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी प्ले टेनिस ओनली। तो ओनली की बात हम बाद में करेंगे, पहले टेनिस की बात करते हैं। तो ये हो गया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। So N A union B is given 65, N A is given 40, N B is given, इसको कुछ भी मान लेते हैं, N B रहने देते हैं इसको, माइनस 10। तो 65 is equal to 40 minus 10, ये हो गया 30 plus N B, ओके चिल्ड्रन? तो 65 minus 30 is equal to N B. So 35 students are those students who play टेनिस, who play टेनिस, यहां लिख देता हूं मैं, who play टेनिस, ओके चिल्ड्रन? अब उसने थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पूछा है, who play टेनिस ओनली। नाउ टेनिस ओनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट who play टेनिस ओनली। तो टेनिस ओनली का मतलब क्या हुआ? बी ओनली। और बी ओनली का मतलब क्या हुआ? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। बी में से कॉमन पार्ट माइनस कर देंगे, तो बी सेट तो हमारा ये आया 35, तो 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 10। सो 25 स्टूडेंट आर दोज स्टूडेंट हु प्ले टेनिस ओनली। टोटल टेनिस खेलने वाले 35 हैं और टोटल क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं, ठीक है? लेकिन टेनिस ओनली 25 है। और क्रिकेट ओनली कितना होगा? अगर हम फाइंड करें क्रिकेट ओनली कितना होगा, तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, तो क्रिकेट ओनली हो जाएगा 30, ठीक है? और टेनिस ओनली हो जाएगा 25। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्लीज डू ऑल द क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। If you have any problem, you can ask anytime. Okay, children? Next time we will be starting miscellaneous exercise of set theory, and we will be completing this chapter. Okay, children? Thank you very much.